میں گزارش کروں گا سرمایہ ملت جعفریہ قبلہ مولانا علامہ عمران حیدر صافی صاحب سے کہ معائن اور ذکر فضائل و مسائل محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائے. ان کی آمد سے پہلے دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 حیدری. محمد اہل بیت محمد بلند تر صلوات. حسین سے خدا دی منشا نیاز وچے نماز وچے، حسین سے خدا دی منشا نیاز وچے نماز وچے، حسین سجدے سر کٹائے حسین تے اجوی نماز وچے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وهو خیر الناصرین والمعین. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. الحمد للہ الاحد المتعال. صلوات علی عبادہ المختار الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. اما بعد فقد قال الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. درود بر محمد و علی بیت محمد. صاحب و زمان کے ظہور میں تاجیل کے لیے بلند آواز سے درود پاک کی تلاوت. سورہ مبارکہ آج موسم کے بھی اچھے خاصے کھیل چلتے رہے. امید ہے ہم بھی ڈسٹرب ہوئے، آپ بھی ہوئے. امید ہے اپنی ساتھ بخیر ہوں گے. سورہ مبارکہ صف میں ارشاد ہو رہا ہے. جو آیہ مقدسہ میں نے تلاوت کی میرے خیال میں آپ سب کو یاد ہوگی، کیونکہ یہ آیت کہیں اور پڑھی جائے نہ پڑھی جائے ختم میں ضرور پڑھی جاتی ہے. فرمان ہو رہا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون. حبیب تسبیح کے لائق ہے جو تیرا رب ہے اور عزت کا رب ہے. کائنات کے واصف عما یصفون، جو واصف اس کی صفتیں بیان کرتے ہیں وہ ان سے بلند ہے. مختصر سا ترجمہ یہی ہے. یہاں اکثر مترجمین نے ترجمہ کیا ہے کہ تسبیح کے لائق ہے آپ کا رب جو عزت والا ہے. اور میں یہ ممبرز پہ بیٹھا ہوں اسے بیداری سے کہنے لگا ہوں یہ ترجمہ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ عربی کی عین سے بھی واقف نہیں، اس لیے کہ یہاں اضافت نہیں ہے. یہ نسبتی اضافی ترجمہ تب ہوتا ہے جب مضاف مضاف الیہ ہو. یہاں تو مطلق عطف ہو رہا ہے. سبحانہ موصوف بن رہا ہے سبحانہ ربک رب العزت ہے، یعنی جیسے وہ محمد کا رب ہے ویسے ہی عزت کا رب ہے. بیدار رہیے گا. جیسے وہ مصطفیٰ کا رب. اور ایک اہم ترین بات رب کا رب العزت ہے، درمیان میں کوئی فصل نہیں ہے، حرف عطف نہیں ہے. اس کا مطلب ہے عزت اور محمد بلا فصل ہے. یہ عزت کسی ایسی ذات کا نام ہے کہ جو مصطفیٰ سے بلا فصل ہے. میں ایک اور آیت ہے سورہ انبیاء کی پڑھ دیتا ہوں. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. بولتی ہوئی آیت ہے. فرمایا عزت بس اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. منافقین عزت کو جانتے ہی نہیں.
वलकिन्नल मुनाफिकीन ला यअलमून, मुनाफिकीन इज्जत का इल्म ही नहीं रखते। अगर तो ये बज़ाहिर जो जाहो जलाल होता है इसका नाम इज्जत है, तो मुनाफिकीन दुनिया में इज्जतदार होते हैं। ये दौलत शोहरत ये सब कुछ, ये तो मुनाफिकीन के पास हर ज़माने में जाती रही। ये किसी ऐसी चीज़ की बात हो रही है जिसे जानना ज़रूरी है। और सवाल ये है अल्लाह के लिए, अगर तो आप कहते हैं कि जाहो जनाब इज्जत है, तो फिर अल्लाह को क्या ज़रूरत है ये जुमला कहने की। और बाकी रसूलों का नाम भी इस आयत में नहीं है, ले रसूल ही नहीं है, ले रसूल ही है। सिर्फ अल्लाह के लिए, सिर्फ उसके रसूल के लिए और मोमिनीन के लिए। अंबिया में कुछ अंबिया ऐसे रहे जिनको बादशाही भी मिली, तो इसका मतलब है उस इज्जत की बात नहीं हो रही। सवाल बनता है पालने वाले, क्या बाकी नबी इज्जत वाले नहीं? माअल्लाह, भाई अल्लाह इज्जत वाला, रसूल इज्जत वाला, मोमिनीन इज्जत वाले। तो आदम से ईसा बाकी नबी है, तो माअल्लाह क्या उनकी इज्जत माअल्लाह नहीं है? तो ऐसी बात नहीं है। ये 73 के 73 फिरके के उलमा ने मुत्तफिक होकर लिखा है, बाकी नबियों की भी इज्जत है, इसमें तो शक ही नहीं। लेकिन यहाँ क्योंकि मुस्तफ़ा का जिक्र था, यहाँ बाकी नबियों का जिक्र अंबिया की फहरिस्त में नहीं है, मोमिनीन की फहरिस्त में है। आप में से कोई नजफ जा चुका है? माशाअल्लाह, मेरे भाई जा चुके हैं, जा चुके हैं। किसके लिए, किसकी ज़ियारत है नजफ में? आप बताइए। मौला अली, मेरे घर में जो नहीं जा चुके वो भी जानते हैं, वहाँ मौला अली की ज़ियारत है। हालांकि मौला अली की एक तरफ आदम दफन है, एक तरफ नूह दफन है। ब्रादरान अहले सुन्नत को भी मैंने जाते देखा है, बात वो भी यही करते हैं, नजफ जा रहे हैं अली की ज़ियारत को। भाई वहाँ आदम भी दफन है, नूह भी दफन है, उनका नाम क्यों नहीं लेता? तो सबने यही कहा है, जब बड़े का नाम आ जाए फिर छोटों का नाम मोमिनीन की सफर में होता है। दुनिया में कोई बंदा ऐसा मैंने नहीं देखा जो ये दावा ना कर रहा हो कि मैं इज्जत वाला नहीं। हर बंदे का दावा है कि हम इज्जत वाले हैं। अच्छा, ये इज्जतदार जो है ना, दार फारसी तरफ है, कहते मैं इज्जत रखता हूँ। आज बस हमने देखना यही है कि इज्जतदार होता कब है। शाम के एक दरबार में मीटिंग चल रही थी कि अली का बेटा आया हुआ है शाम में, तो क्यों ना उसे बुला के, शाम में है, हमारी सल्तनत है, हमारी शाही है, और यहाँ उसकी सखावत के चर्चे हैं, तो क्यों ना हसन को माअल्लाह यहाँ बुलाया जाए तो ही की जाए। और उन्होंने कहा सादी सी बात है, हसन को दावत दो, सरकार हसन को दावत दो, दरबार में बुलाओ, हम यहाँ तय कर लेते हैं, उनकी इज्जत नहीं होगी तो ही होगी। तय ये हुआ कि जब हसन आएगा, वो जो हाजिब था, दरबारों में एक हाजिब होते थे जो पर्दा हटाते थे, हाजिब को कहेंगे वो पर्दा ना हटाए तो ही होगी। फिर उन्होंने कहा फिर हम बैठने के लिए मसरत नहीं देंगे, हसन को खड़ा रहना पड़ेगा। फिर जब यहाँ भी हो जाए तो फिर दरबारियों में से कुछ लोग उठ के अपने अपने बाप दादा की जायदाद बताएंगे। और हसन उस बाप का बेटा है कि जो अपनी जूती को टांग के खुद लगाता था। ये जुदा बात है कि हजरत अब्बास गुजर रहे थे, अली जूती जोड़ रहे थे, खुद अपनी जूती जोड़ रहे थे, अली अब्बास गुजर रहे थे। देखे कहते या अली अब तो ये फट चुकी है, पुरानी हो चुकी है, कोई नई ले ले। और बातें अब्बास जरा बताओ क्या कीमत होगी मेरी जूती की तेरे नजदीक? उसने यार ये एक दिरहम भी कोई नहीं देगा, क्योंकि इस पे इसकी असल है कम नजर आती है, टांके ज्यादा है, कोई नहीं खरीदेगा। अली ने जूती जेब पा की, अब्बास की जाने देके कहते हैं, और बात अब्बास
वल्लाहि नफ्सु अली बियदिही इन्ना मिल्ककुम तहता ज़ाक़न अलैन अली इब्न अबी तालिब। ऐ अब्बास, अली को मेरे जली की कसम, ये तुम्हारी जितनी भी ताकतें बादशाहते हैं ना, अली अपनी इस जूती से वो छोटी समझता है। ये दो जूतियां बड़ी अजीबोगरीब हैं, बात ज्यादा है। दो जूतियां अजीब हैं। एक रसूलुल्लाह की मेराज पे गए, और जो फरिश्ते लोग गए थे ना मेराज पे गए, मैंने बड़ा पूछा कि ढूंढा है इदराक चक्कर आ जाए, अक्ल को पसीने आ जाए, फिक्र गुमराह हो जाए, इनकी हकीकत की जुस्तजू में जब मैंने ढूंढा तो मुझे ये मिला। कमाल क्या था, जिब्राइल रोक गया, मोहम्मद जूती पहन के जा रहे हैं। मेरा खुदा तब खुला जब मैंने देखा मुस्तफ़ा घर में आते हैं, मसनद पे बैठते हैं, जूती उतारते हैं। मुझे नहीं पता किसने ज़मीन की तालाबों को पकड़ा हुआ है, जूती उतारते हैं, मसनद पे बैठते हैं। अली यदुल्लाही हाथों से अपनी आबा से मुस्तफ़ा की जूती साफ करते हैं, अपने पाकीज़ा हाथों से मुस्तफ़ा की जूती साफ करते हैं। जूती साफ करके रख के अली मुस्तफ़ा के शहर से निकल के बतूल के शहर में आते हैं, अपनी मस्जिद पे बैठते हैं। अली बैठते हैं, बतूल अपनी चादर ततहीर से अली की जूती साफ करती है। लेकिन जो जुमला मैंने कहना है फैसलाबाद वालों, वो ये है क्योंकि अली के हाथ लगे थे इसलिए ये जूती मेराज पे गई। जिससे अली ने हाथ लगाए वो भी मेराज पे गई, जिसे ज़हरा ने लगाए वो भी मेराज पे गई। लेकिन फर्क था, जिसे अली ने छुआ वो पर्दे के बाहर रही, जिसे बतूल ने छुआ वो हिजाब के बरी आई। सलामत रहिए, सलामत रहिए। उधर भी कभी कभी हाथ उठते नजर आने चाहिए। सलामत रहिए। तो उन्होंने कहा हसन क्या बताएगा, अपने बाप दादा की जायदाद, दावतनामा भेजा गया। ये कभी एक मजलिस मुझे याद करिएगा, मैं 7 साल पे पढ़ूंगा। ये शहाबी मौलावी है, कमाल बनता है। और मसला ये कि हम कुछ को जानते हैं और कुछ को हमें इग्नोर कर चुके हैं। ये शाह भी मौला अमीर के राजदारों में से एक राजदार था। शाह के हाथों भेजा गया, शाह इब्ने सौहान नाम था इनका, इनके हाथ खत भेजा गया और फरमाते हमें कबूल है दावतनामा, जाएंगे। सुबह हुई, सूरज ने अपने मालिक को सलाम करके तलू किया। अली का लाल उठा, मुस्तफ़ा का अमामा सर पे रखा, वही अली की फटी हुई नालैन ज़ेब पाकी, नाना की अबा, नाना की छड़ी, बाबा की तलवार। हसन घर से निकले, एक एक कदम पे फरिश्ते निसार हो रहे थे। मेरी बात याद है तो अब उसका लुत्फ आएगा। इज्जत याद है, जैसे ही शहर में आए, दरबार में दाखिल हुए, हाजिबों ने हाथ बांध लिए। वो हुक्म था कि पर्दा नहीं हटाना, उन्होंने हाथ बांधे। एक हवा का झोंका आया, एक ही आया, हवा का झोंका आया। दाएं वाला पर्दा बाएं को उड़ा, बाएं वाला दाएं को उड़ा। मुस्कुरा के फरमाते हो तख्त पे बैठे हुए फकीर, तू अपने नौकरों को रोक सकता है, हमारे नौकरों को नहीं रोक सकता।
आगे आगे बढ़े। तू अपने नौकरों को रोक सकता है, हम फिर उसकी जन्नत क्या कहते हैं, या अमीर शाह अमा तकरम नहनु इज्जतुल्लाह व किब्रियाहु, तू हमारी तौहीन नहीं कर सकता इसलिए कि हम अल्लाह की चलती फिरती इज्जत है। हम अल्लाह की इज्जत है। आए बैठे तो यार 3-4 जुमले मेरे हैं, मैं इतना जिम्मेदार हूँ, अभी रीच में थी मिंबर से आया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तब से आज तक किसी ने यूं नहीं किया, और ये बड़ा मुश्किल होता है, ना किसी को यूं करने दिया है, और अल्हम्दुलिल्लाह दाद ली है उनसे जो मुझसे बड़े हैं, इसलिए मुझे पता है कि एहतियात कहाँ करनी है कि 4 जुमले मेरे हैं इस वाक़े के नहीं। वो जो कहा था ना बैठना नहीं, अभी वाक़या चल रहा है, किसी ने मसनद नहीं देनी, सबसे पहले वो खुद उठा, उसे देख के दूसरे उठे थे, हसन मसनद में बैठे थे, अब एक दूसरे को देखे क्या तुम्हें जो कहा था नहीं उठना, उन्होंने कहा पहले तू उठा था, वो कहता मैं कैसे ना उठा, उसे कहा पहले मैं क्यों ना उठता, तुझे क्या मजबूरी बनी, उसने कहा जैसे ही हसन है राए तो अल्फा मलकन फबे कुल्ल मलकन ऐदीहिम अबरज़ुन नार फयक़ूलूना ले इज्जतिल्लाह फला उबय्यनु वालिदैक, जल्दी कर अल्लाह की इज्जत के लिए खड़ा हो वरना तेरे बाप का नाम बता दिया जाएगा। अल्लाह की इज्जत के लिए खड़ा हो। हसन बैठे थे, जल्दी है वक्त बचा, वो भी बैठे थे, इशारा किया, एक बंदा उठा, अमीर शाह मेरे बाबा के पास दादा के पास 5000 ऊँटनियाँ थी, 5000, जो मैं कह रहा हूँ मेरे लफ्ज़ वो ये है, मैं होता तो उसे ज़रूर कहता 5000 थी लेकिन अपनी नहीं थी, वो नबी को जो महंगी बेची थी ना। दूसरा उठा, मेरे दादा के पास इतना सोना था सांवरी होगा। एक और उठा, मेरे नाना के पास इतने घोड़े थे, मैदान में कभी टिकटे नहीं लड़ा, ना जाने घोड़े किस काम आते थे। जब ये सब कुछ कह चुके, आज भी थोड़ा हिस्सा होगा मेरे घर में, ज्यादा उधार रह जाएगा। मैदान बनाना था मैंने थोड़ा सा, जब सब कह चुके उसने कहा हसन तुमने भी कुछ कहना हो तो कहो। हम भी तो कहते हैं, हम भी तो कहते हैं ज़माने में उठे सब पे तैराना निगाह डाली, फरमाते हमने देखा तुमने अपनी अमीरी के किस्से सुनाए, हम भी सुना देते हैं। कान जद्दी मखज़नुन नबुव्वत, मेरा नाना नबुव्वत का खजाना था। मखज़नुल इस्मत वल इफ़्फ़त, मेरी माँ इस्मत का खजाना थी। वकाना अभी जागिएगा खुदा के लिए, मखज़न कुदरत इलाहियत है, मेरा बाबा खुद अल्लाह की कुदरत का खजाना था। तवील बात है, एक जुमला मेरे सामने आ गया है, उम्मीद है खरीदा जाएगा। ये वो जुमला है जिसमें मौला हसन ने खुद नाज किया था, लेकिन मैं मौला की शान बयान करूँ और बात है, जो खुद हसन कहेंगे मेरी शान ये है। चकरा गया था खुदा की कसम से। हसन कहते हैं तख्त में बैठ के इतना रमम मिसली, कौन हो सकता है मुझ जैसा, क्यों सलात जनाजा था अमीर मोमिनीन, मैं वो हूँ जिसने अली का जनाजा पढ़ाया है। परेशान हुए, अब हसन कहते हैं आओ तुझे थोड़ा सी झलक दिखाएं। दिखाइए, फरमाते मेरे शाम। अच्छा ये एक और बात भी याद रखिएगा, ये अमीर के 2 मादे हैं, एक अमीर आमद से है, एक अमीर मैराथन से है। जब हम 14 के लिए अमीर कहते हैं तो वो मैराथन वाला अमीर होता है,
नहीं होता। ये भी तो किसी 2 टके के 4 बंदे मिल के किसी को अमीर बना देते हैं। ये अमर वाला नहीं है, मैराथन वाला नहीं। अभी फिर से सताऊंगा, मैराथन और अमर में क्या फर्क है। फरमाते हैं ताकत में बैठा है, तुझे बताऊं। फरमाते हैं ना तो इज्जतुल्लाह है व किबरियाहु, नहनु सिफ़वतुल्लाह है व अस्फियाहु, नहनु नजबुल्लाह है व अहिब्बाहु। अमा तालम लौ शिअतु उबद्दिलु शान बिल इराक़ व इराक़ बिशान व ज़कर बिल उन्स व उन्स बिल ज़कर व क़ाम मिन मजलिसिही क़ाल या इब्न अबी तुराब मन यक़दिरु अला ज़ालिक क़ाल अमा तस्तहयिना अन तक़दी बैन रिजाल। बस इतने का ही तक पहुंच सकेगा। फरमाते मैं अल्लाह की इज्जत हूँ, मैं चाहूँ मशरिक को मगरिब करूँ, मगरिब को शिमाल करूँ, शिमाल को जनूब करूँ। मैं चाहूँ तो अर्श का गिरबान पकड़ के ज़मीन पे ले आऊँ, चाहूँ तो ज़मीन को अर्श पे ले जाऊँ। मैं चाहूँ तो मर्द को औरत करूँ, औरत को मर्द करूँ। मैं चाहूँ जो चाहूँ कर सकता हूँ। फैसलाबाद वालों मजमे में ही एक खुशामदी खड़ा होकर कहता है यमना अबी तुराब मैं यक़दिरु अला ज़ालिक, अबू तुराब के बेटे ये कौन कर सकता है? तू मर्द को औरत का दावा, मशरिक को मगरिब का। मेरे मौला ने कुछ नहीं कहा, बस एक बात कही अमा तस्तहयिना अन तक़दी बैन रिजाल, औरत होके मर्दों में बैठी है। बैठी है। हमारा तस्तहयिना अन तक़दी बैन रिजाल। अब ये जो खड़ा हुआ था ना, ये भागा। हज़रत के फरमाते हैं सदा पूरी छोड़ के जा, जागना। इसने शर्माते और लजाते हुए मुड़ के देखा। फरमाते कद सारत अयालों के रजुलन, मैंने तेरी बीवी को मर्द कर दिया है। तेरी बीवी को अली के दुश्मन की सजा भी यही होनी चाहिए। इससे आगे इजाजत भी कुछ कहने की। अब ये बैठा हुआ था ना तख्त पे, इसकी तबीयत खराब हो, गुस्सा आया। असल हमारे दरबार में हम ही जूते बाकी है, दरबार भी हमारा, जूते भी। मेरी बहनों से गुजारिश है कि अगर ये खामोशी इख्तियार करें तो मेरी गुजारिश है मेरी बहनों से, मजलिस का माहौल है, इसमें मुक़द्दस हस्तियाँ आती हैं तो आप अब तो जो रखे बहने हैं खामोश हो जाएंगी। यहाँ कम अज़ कम मुक़द्दस ज़बान में कुछ सिफ़ात का एहतराम ज़रूरी है, वो आती है। आपका अकीदा होगा, मेरी तहकीक भी है। और फिर कहा हसन जाने दो, हो गई से गलती, माफ कर दो। फरमाते नहीं करेंगे। क्यों? फरमाते हत्ता याद दो मैं पाता नेहा फलन खुंसा, माफ तब करूंगा जब इसी के बदन से एक बेटा पैदा होगा। चलता फिरता इश्तिहार हो, जो अल्लाह की इज्जत को भोंकता है यूं ही बेनसला हुआ करता है। गुस्सा आया, बंदे को गुस्सा आया और उसने कहा माफ कर दो। दो लफ्ज होते हैं अरबी में, लफ्ज होता है सीरी, सीरी। दो मर्द आपस में लड़े तो और बात है, दो औरतें लड़े तो और बात है। लेकिन अगर एक मर्द, मेरा जुमला लगा है इसलिए मैं 2 मिनट समझा रहा हूँ। एक मर्द और एक औरत लड़े
कोई औरत मर्द से लड़े और मर्द शरीफ हो और वो उसके मुंह न लगना चाहता हो, वो कहता है चल बीबी जा यही समझ यही कहेगा ना मर्द, बीबी जाओ आप काम करो, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता। अगर ऐसे आप तस्वर करें कि अरबी मर्द से अरबी औरत लड़ रही हो तो वो अरबी में उसे कहता है सीरी, बीबी जाओ। ये सीरी का मानी क्या है? नहीं, बीबी एक मॉडल्स का सीखा है कि ऐ खातून जाओ। ये पंजाब गुजरात इलाके में बीबियां मैंने औरत को किया नहीं पता, मेरी पंजाबी इंग्लिश अरबी सारी मिक्स हो चुकी है, जबरदस्ती निकलती है, कभी बोलनी इंग्लिश हो अरबी आ जाती है, बोलनी अरबी हो इंग्लिश आ जाती है, ओदी माफ़ी दे आ है। अरब कहते हैं वो खातून को कहेंगे खातून जाओ, सीरी, सीरी का मानी क्या है? औरत के लिए जाओ, मैं तेरे मुंह नहीं लगना चाहता। कहा सर मैंने ये बंदे देखे हैं अस्कहो वाले, जानते हो ना मैं क्या कर सकता हूँ, इसे अभी वापस इसकी जेल से बदलो, माफ करो। अल्लाह के फरमाते हैं चुप होता है या तुझे कहूँ? मैं जुमले की अजमत के लिए मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर चलो ज़बान में असर अता फरमाए। मेरी दुआ है आप इनकी हौसला अफजाई करें कि नहीं मैं कोई कल का मुस्तकबिल का बहुत बड़ा बंदा होगा। हौसला अफजाई करनी चाहिए अपने इलाके के बच्चों को, तरबियत भी यही है। आप हौसला अफजाई करेंगे इनमें इश्क बढ़ेगा। कभी हम भी ऐसे ही पढ़ा करते थे, इसलिए आपको कह रहे हैं। तो बात चुप होता है या तुझे भी कहूँ? चुप हुआ। जो जुमला अली के लाल ने बोला है, जुमला नहीं, जुमला असरार गवामिज़ो मनाक़िब जमला है इसी एक में। और बातें तो तख्त में बैठ के इतरा रहा है, समझ रहा है कि हम बहुत कमजोर हैं। सरकार फरमाते तुझ में और हम में फिर भी फर्क है। लो शेख लो शिअ्तु उबय्यिनु अहवाल उम्मी फातिमा ज़हरा इलल हफ़्फ़ा बैन अन्नास वलो तक़दिर अन तुबय्यिन फ़ी उज़ुनी। फरमाते मैं अपनी माँ ज़हरा से लेकर हव्वा तक का किरदार बुलंद बताता हूँ, तू अपनी माँ का किरदार मेरे कान में बता दे। दोनों हाथ बुलंद करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, सुलेमान अली हक नारे हैदरी, 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 और मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद तक सलावत। ड्यूटी दे रहे हैं, ज़ाकिरीन से भी सख्त ड्यूटी है, मौला ने जज़ा दे। फरमाते मैं तो बयान कर सकता हूँ, तू नहीं कर सकता। क्यों? फरमाते हैं मैं जानता हूँ काना तुमी और फतिंदल मलाइका का तस्बीह। फरमाते मैं तो जानता हूँ मेरी माँ का नाम मशहूर था फरिश्तों की तस्बीह में। मशहूर था फरिश्तों की, और हमें आपको बताने की जरूरत नहीं। जो आपके हाथ था हम
से। उसने जूती दी तो इसने कुछ तोहफे दिए। अब इसने कहा ये रिसालत करूँगा, अगर तो तोहफे ले लिए कहूँगा देखा आले हाशिम खजाने के लिए सब कुछ कर रही है, ना लिया तो कहूँगा देखा फजल रसूल को तोहफा दिया कबूल नहीं करता। उसने दिया, मेरे मौला ने सासा को देखा, सासा ले आओ। वो जो जूती पहनाने आया था उसे बुलाया, जूती पहनी, फरमाया ये उसे दे दो। हवाला तो नहीं देना चाहता लेकिन दे रहा, बल्कि मैं नहीं देता, लेकिन आलिम का नाम बता देता हूँ, अल्लामा असद हैदर हाशमी। उन्होंने हाशिए में एक जुमला लिखा है, वो कहते हैं इस मोची के भी क्या कहने। जब दिया ना, ये उठा के चला, बाहर निकला तो लोग रश करने लगे, अमीर शाम ने तुझे जवाहर का भरा हुआ डाल दिया। हाँ ये किसका है? अमीर शाम का। फकीरों को बुला के कहते हैं फकीरों की कमाई फकीर खाए, मैं अली का नौकर हूँ, मुझे ये नहीं चाहिए। बस समेटने की जाने पड़े। एक मुल्क है अज़रबैजान, नाम सुना हुआ अज़रबैजान का? ये ईरान का नेबर है, रशिया से अभी सेपरेट हुआ है। अज़रबैजान का एक बादशाह फजल नाम था, फजल बिन आमिर अज़रबैजान का। उसका एक ही बेटा था जो ताज का वारिस था। शिकार पे गया, बेटा उसका घोड़े से गिर के मर गया। लोग लाए उसके बेटे को, फाड़े, मातम, बादशाह का वारिस चला गया। बादशाह मुतमईन ना रो रहा है ना परेशान। वज़ीरा क्या कहता, तेरा एक ही बेटा था, जवानी में मर गया, तख्त का वारिस कोई नहीं। मुझे कहता मुझे परेशानी ही नहीं। कहा क्यों? कहा ये 70 उलमा मेरे दस्तरखान पे टुक्कर खा रहे हैं सालों से, और ये मुझे बताते कि अल-उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस होते हैं। अंबिया मुर्दे जिंदा करते थे, ये मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। सदा गया बेटी जिंदा करो, और बादशाह वाले कर रहे हो। जिंदा कैसे? तुम तो कहते थे अंबिया के वारिस हो, ईसा जिंदा मुर्दे जिंदा करता था। अगर बादशाह बातें हो जाती हर बार को सीरियस नहीं लेते। जागिएगा। अब जब उधर से जवाब हुआ ना, पहले तो उसने कहा इनकी तोंदे काटो, इनको तो डालना जिंदान में। अब परेशान हुआ, अब क्या होगा? आखिरी बेटा मायूस हुआ, इसका वज़ीर करीब आके कहते हैं बादशाह मैं बहुत अर्सा पहले खलीफा गया था, मिंबर पे अली खुतबा दे रहे थे, मैंने अली की एक हदीस सुनी थी। अली फरमा रहे थे अल इमाम लैसल इमाम हत्ता युहिल मौत व युहील ग़ैसा, बेइशारत असाब आते ही कि इमाम तब तक इमाम हो ही नहीं सकता जब तक ठोकर से मुर्दे जिंदा ना करे, इशारे से बारिश ना बरसाए। मसला हल हो गया, जाओ घोड़े पे बैठो, ले आओ। लेकिन अली तो शहीद हो गए। उसने कहा अजीब अहमद लोग, पहले हौसला बढ़ाया फिर मायूस। उसने कहा लेकिन अली का एक वारिस है जिसका नाम हसन है, मैं यूं सदियां समेट के तुम्हारी झोली में डालने लगा हूं। उसने कहा जाओ शाम से पहले हसन को ले आओ। बादशाह मदीना अज़रबैजान, मुसलसल घोड़ा दौड़े ना तो भी 15 दिन लगेंगे, शाम तक कैसे आ सकता हूँ? तो उसने कहा तूने बात की है, 15 दिन में मेरे बेटे की लाश से बदबू आना शुरू हो जाएगी। शाम तक लाता है तो ठीक, वरना तेरे सारा खानदान कत्ल करा दूंगा। बैठा घोड़े पे, शहर से निकला, पता था मैं कहाँ जा सकता हूँ मदीने। शहर से बाहर सूरज, बस उस दिन सूरज नहीं, इसकी नब्ज़ें चल रही थी। सूरज गरूब होने के करीब हुआ, घोड़े से उतरा, थाड़े निकल गई, खानदान सारा मारा जाएगा। रो रहा है, वाह हसन तेरा नाम भी लिया तो सिला क्या मिला? लफ्ज़ है फैसलाबाद वालों, एज़ा बेराजुल रफ़ा बेरिजलिही
अचानक एक बंदे ने पाँव की ठोकर मारी और से पहले पहुंच गए। मेरे लिए बंदे ने पाँव की ठोकर मारी और देखे कहते कौन हो भाई, पहले परेशान हो, जिसे याद कर रहे हो हसन आ गया है। सलामत रहिए। इधर बोला आप आ गए करम, बैठिए सीखिए, जल्दी चले, शाम ढल गई, मेरा खानदान मारा जाएगा। और मैं मेरा हाथ थाम, जो मदीने से यहाँ आ सकता है वो तेरे घोड़े का मोहताज नहीं है। बड़ा खूबसूरत सुन रहे हैं। बाहर वाले मजमे से अभी तक शिकवा मेरा थोड़ा सा बाकी है, उधर से भी मुझे महसूस होना चाहिए। एक नहीं सारे खदीर के बाद हाथ बांधना जुर्म करार दिया गया है। आए फादर बिन अमीर सामने ले आया कदमों में गिरा, एक ही बेटा था। और मैं तो इससे बाद में बात करेंगे, आओ पहले तेरे बेटे को देखते हैं। चेहरे से कपड़ा हटाया गया। ज़ाकिरीन कहते हैं ये जुमला मैंने फला जगह पढ़ा, तो ये हो गया उधर मैं उत्थे पढ़िया तो इंज होया, उत्थे पढ़िया तो इंज होया। मैं नहीं आखने लगा कि मैं कितने पढ़िया तो किंज होया, मैं ये सुनना चाहना मैं इतने पढ़िया तो किंज होया। ये मैं कह रहा हूँ, मैं ये वादा कर रहा हूँ, तुम हाशिर तक पाँव पे खड़े होके भी वादा करो, कीमत नहीं होती। जैसे ही कपड़ा हटाया हफ्ता के फरमाते हैं, माँ तो बनी इमामों का काम अब अंतनामा, तुझे किसी ने आदम ने सिखाया, इमाम खड़ा हुआ है तू लेटा हुआ है। दोनों हाथ रख करके मन कुन तो बोला, मन कुन तो बोला, सहरा का शोहर, हसनैन का बाबा, काबे का काबा, नबियों ने पुकारा, वलियों ने पुकारा, मौला है कब्बर, आका है अबूजर, अली हक नारा है अली, मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंद सलावत। आपने हक अदा कर दिया। क्या हसीन जुमला है कि किसी ने आदाब नहीं सिखाए। मैं 7 साल अमेरिका में रहा हूँ, पाकिस्तान आया ही नहीं। 7 साल पाकिस्तान में आया ही नहीं, पिछले साल जाना शुरू किया। वहाँ मैं अशोक के पढ़े हैं, मोकले मोतवाद पे पढ़े हैं, मुझे मेरे जुमले भेजे जाते रहे हैं। मैं मिंबर पे कह रहा हूँ, ये जुमला मैंने सबसे पहले पढ़ा था, आप कोई पढ़ेगा तो मेरा चर्चा होगा। पिछले साल पहले मैंने ये गुजरावाला में पढ़ा भैया, सही है। सुना के बात करना और बात है, किताबों में खुद को गुम कर देना और बात है। सुनाते हैं किसी ने आदाब नहीं सिखाए। इमाम खड़ा हुआ है, तू लेटा हुआ है, खड़ा हुआ। अस्सलाम वालेकुम या सय्यदी या मौलाई। मैं समझाना चाहता हूँ यहाँ, मैं कुछ समझाना है। मेरे सैयद मेरे मौला सलाम, इसका फादर बिन अमीर हैरान होकर कहते हैं अफसर को मैंने पहली दफा देखा है, तुझे कैसे पता चला ये हसन है? जाइए कहते हैं हाँ हुआ ना जुलूम कहते बाबा यही तो वो है जिसने मलकुल मौत को हुक्म देके कहा इसकी रूह लौटा, ये मेरा है।
میرا ہے. قدموں میں گرے باپ بیٹا. فضل نے کہا مولا کچھ عرصہ رہیے, قیام کیجئے, خدمت کریں, ہم آپ کی دین سیکھیں. کچھ دن رہے, کچھ دن کے بعد انہوں نے فرمایا فاضل ہم جانا چاہتے ہیں. آ کے قدموں میں گر پڑا. فرزند رسول میں نے ساری رات سوچا, سو نہیں پایا, آپ کو گفٹ کیا دوں, تحفہ کیا دوں. پہلی دفعہ علی کا نام آیا ہے. میں نے اپنے خزانے کو کھول کھول کے بار بار دیکھا. میں نے کہا یہ ہیرے جواہرات ان کی جوتیوں میں پڑے رہتے ہیں, اس کی تو انہیں وہ ضرورت ہی نہیں. سوچ سوچ کے ہم میاں بیوی نے آپس میں مشورہ کیا, آخر میں ایک فیصلے پہ پہنچے ہیں. اللہ نے ہمیں ایک بیٹی دی ہے, ہم چاہتے ہیں آپ اسے اپنی کنیز بنا لیں. فرماتے تو کیا جانتا ہے, ہم اماں کے کہنے پہ آئے ہیں, آئے ہی اسی لیے ہیں. اب ہے میرا سینہ, مجھے پتا ہے اس کے اندر اب چل کیا رہا ہے. جیسے فضل بن عامر بیٹی کو مبارک دینے آیا, آگے حجاب تھا, حجاب ہٹانے لگا. بیٹے کا ابھی تک کام کھولے نہیں جاؤ, اندر داخل نہ ہو, اب میں بطول کی عزت ہوں. اب اندر داخل نہیں ہونا. میں نے کہا تھا نا میں صدیاں سمیت کے گود میں ڈالنے لگا ہوں. عقل ہوا. اس بیوی کا نام تھا فروا, رملہ. کیا نام تھا؟ رملہ. عقل ہوا. اللہ نے ایک بیٹی عطا کی. اب حضرت رملہ کی کنیت پڑ گئی ام فروا. میں نے یہ صدیاں سمیت کے دینی ہیں تمہیں. رملہ نام تھا. عقل ہوا, بیٹی ہوئی, نام فروا رکھا, کنیت پڑ گئی ام فروا. 1 سال کے بعد بیوی نے کہا سرکار میں چاہتی ہوں میری بھی کوئی نسل ہو جس پہ میں فخر کروں کہ بطول کی نسل سے ہے, بیٹا چاہیے. فرماتے اتنی سی بات, ہم اللہ سے دعا کریں گے ضرور بیٹا عطا ہوگا. لیکن کہتی ہے کنیز اتنی بھی بھولی نہیں ہے جو مدینے سے پلک جھپکنے میں آذربائیجان آ کے میرے بھائی کو زندہ کر سکتا ہے. وہ دعاؤں کا اتنا محتاج نہیں ہوتا. سلامت. 2 جملے میرے فضائل کے اور پڑھنے ہیں. میرے کبھی موقع ہو تو صرف سرکاری قاسم آج تعارف کروایا ہے میں نے. ایک جملہ ہے مجھے بڑا پسند ہے. کیا حسین جملہ ہے, کیا حسین جملہ ہے. جنگ لڑنے کے لیے میدان میں عجیب و غریب سا جملہ ہے. عین قلب لشکر میں گھوڑے سے اترے, صفا شخص و نعلہ. جائیے گا لشکر کے درمیان میں آ کے صفا شخص و نعلہ, زین سے اتر کے جوتی کا تسمہ باندھنے لگے. جوتی کا تسمہ باندھ رہے ہیں. وہ جو لڑ رہے ہیں حیران ہو کے کہتے ہیں اتنا اطمینان. علامہ سید ہاشمی حاشیے میں لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں اصل میں قاسم تسمہ قلب لشکر میں باندھ کے انہیں بتا رہے تھے تمہاری حیثیت میرے نزدیک میری جوتی کے تسمے سے بھی کم ہے. آپ رہیے سمیٹ لیے مجھے, میں تمام وہ وقت بھی بہت ہوا. عباس کے شاگرد تھے, لڑائی ہوئی کربلا میں. عمر اتنی تھی اور علامہ قاتل کہتے ہیں لم یبلغ الحلم, پاؤں رکاب تک نہیں پہنچتے تھے. شبیر نے خود بچھایا. 4 جملے مسائل کے بس یہی قبول فرمائیے گا. خود بٹھایا شبیر نے سین میں, مقتل میں بھیجا. عباس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں میرے شاگرد کے جوہر دیکھیں. دونوں بھائی ٹیلے پہ آئے. عباس وہاں سے ہدایات دے رہے ہیں, قاسم لڑ رہے ہیں, مقتل میں آئے, جنگ جاری ہے. عباس وہیں سے کہہ رہے ہیں قاسم دائیں رکاب پہ پاؤں دباؤ,
जोर डाला डाला। अब घोड़े को दाएं मोड़ो, मोड़ा। अब झुक के घोड़े की लगाम ढीली छोड़ो, छोड़ी। अब मारो नेजा, अब बाएं झुको, अब लगाम छोड़ो। अब सीन पे खड़े हो जाओ। 70 बंदे जब मारे ना कासिम ने, अब्बास ने हसरत से देखा हुसैन को, मौला अभी प्यासा है, अभी ये प्यासा है, काश थोड़ा सा पानी मिल जाता, मेरा कासिम शामियों को शाम दिखाता। मैंने ज्यादा मसाइब नहीं पढ़ने, सिर्फ एक लोहे के 2 मिसरे पढ़ने हैं। जब बहुत से मार चुके ना, अरसद मलूम भी मार चुका, फिर इब्ने साद ने कहा यक मुश्त हमला करो। बस फिर घोड़े दौड़े। लफ्ज है बताकर के यही वादा फी ओलो के फारा से, घोड़े के गले में यूं बाहें डाली। मैंने इशारा ही कर सकता हूं। बैठ जाइए भाई। एक जुमला और बस। आप मेरी जरा देखें, मैंने 2 जुमले बस टाइप के पढ़ने हैं। गले में बाहें डाली, एक लाइन ने नेजा मारा। मतलब 2 जुमले सुन लो। कासिम दीन पे सफल नहीं पाया, या एक और लाइन ने तीर मारा, तीर कासिम के पांव में बेबस्त हो गया। जिस पांव में तीर लगा था वो पांव रकेब में फंस गया। जिधर जिधर घोड़ा जाता है उधर उधर हसन का नाम जाता है। बेवा माँ की कमाई तकसीम हो गई करबला के मैदान में। शबीर बड़ी मुश्किल से आए, मैं यही कह सकता हूँ, चादर में उठाने लगे। कासिम कासिम कहाँ हो मेरे लाल? यहाँ यहाँ आवाज़ें हैं, कुछ आवाज़ें घोड़ों के सुमों से आई। मौला मैं यहाँ हूँ। चादर की गठरी बना के खीमे में आए, माँ के सामने रखा। बड़ी मुश्किल से माँ ने तस्वीर दोबारा बनाई। जुमला मेरा एक ही अब कहने लगा हूँ, इसी से फिर बातों करते रहिएगा। बड़ी मुश्किल से तस्वीर बनाई, रो नहीं रही, सकता है। देखे कहती है मौला कासिम तो मुकम्मल हो गया है, शहरों वाले हाथ नहीं मिल रहे। माता है हुसैन।